कि quantum mechanics tells us that a proton has a spin we denoted the spin by I, and we also saw that the proton associated with the spin has a magnetic moment mu, which is given by gamma I, where gamma is the gyromagnetic ratio which relates the angular motion the orbital or the angular momentum with the magnetic moment. ये एक angular momentum है और ये एक magnetic moment है. ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया. अब जब क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें ये बता दिया कि a proton can be treated like a magnet, so this magnetic dipole moment exists with a proton. So if you have a large number of protons, the magnetic moments can add up vectorially, and you divide by the volume, you obtain what is called the magnetization. So a bulk sample of water or any solution can be magnetized, and it will have a bulk property, a macroscopic property, which we call the magnetization. And now we can leave quantum mechanics aside. Quantum mechanics is no longer relevant in most cases. We can use a classical equation which is called the Bloch equation, which would suggest that this magnetic moment, when placed inside a magnetic field B, experiences a torque given by this classical expression called the Bloch equation. Now, as a result of this torque, the magnetic moment M, which has been placed inside some magnetic field B, undergoes certain motion. And we wrote the differential equation, we solved the differential equation, and we found out that this rotational motion is of the precessional kind. That is, the tip of this magnetization precesses about the magnetic field along a cone. So this is how the magnetization vector proceeds with time or evolves with time. If the magnetization vector was initially perpendicular to the magnetic field, it would have rotated in the equatorial plane. If it is inclined at an angle of theta with respect to the z-axis, it will traverse a cone so that the opening angle or the lip angle of the cone remains the same. If it's initially along the z-axis, it does not precess at all. ठीक है? तो ये हमने डिराइव की थी ये एक्सप्रेशन. और अगर हम इस को प्लॉट करें इस मैग्नेटाइजेशन के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, तो हमने ये देखा कि mx, which is the x component of the magnetization, varies sinusoidally. My also varies sinusoidally but is 180 degrees out of phase. And the third thing, the z component remains constant with time. So all of these physical ideas we obtained from the precession of the magnetization when it is placed inside the magnetic field. ठीक है? और ये क्लासिकल इक्वेशन है. क्वांटम मैकेनिक्स की बैसाखियों पे हम चले सिर्फ इतना जानने के लिए कि एक स्पिन होती है एक प्रोटॉन की और उस स्पिन के साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट वाबस्ता है. उसके बाद हमने क्वांटम मैकेनिक्स को एक तरफ रख दिया और फिर क्लासिकल इक्वेशंस यूज की और देखा कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैसे प्रिसेस कर रहा है. अब देखो, NMR एक मैक्रोस्कोपिक फिनोमेनन है. उसको देखने के लिए हमारे पास कॉइल्स होती हैं. आप देखें ये mx और my टाइम में साइनसॉइडली वेरी कर रहे हैं. तो अगर हम एक कॉइल रख दें, एक पिकअप कॉइल रख दें, तो ये चेंजिंग मैग्नेटाइजेशन एक चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और उस फ्लक्स, वो चेंजिंग फ्लक्स एक EMF प्रोड्यूस करता है फैराडे के कवानीन के तहत जो 1827 में आए. और उनको हम कंप्यूटर में ले जा सकते हैं
किसी भी ऑसिलोस्कोप में ले जा सकते हैं, ठीक है, और फिर उसका स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। यही एनएमआर स्पेक्ट्रम कहलाता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात जो हमें पता चलती है, ये तो एक मेरी नजर में एक लेमैन पिक्चर है, आप एसएससी के स्टूडेंट के लिए एक लेमैन पिक्चर है। अब एनएमआर की पूरे मैदान को समझने के लिए हमें इससे थोड़ा सा आगे जाना होगा, और हमारे इन लेक्चर्स का मकसद भी ये है कि हम एनएमआर की फंडामेंटल्स को जान सकें, क्योंकि अगर हमें एनएमआर की फंडामेंटल्स का अच्छी तरह अंदाजा हो जाए तो हम उसकी एप्लीकेशंस समझ सकेंगे। केमिस्ट्री में उसकी क्या एप्लीकेशंस है, स्प्लिटिंग्स क्या होती हैं, कपलिंग्स क्या होती हैं, एनएमआर के स्पेक्ट्रम से हमें मॉलिक्यूल के कैसे शिनाख्त हो सकती है, एंड सो ऑन। So the interesting thing in this block equation is that these oscillating magnetization components have a certain frequency omega, and that omega is given by minus gamma b, the Lamarck formula. ठीक है, this is something that we derived explicitly. ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा कि जब एक मैग्नेटिक डायपोल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक डायपोल अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, ये दो कॉन्फ़िगरेशंस हम ले लेते हैं। इसमें एक एनर्जी है, बिलफर्ज इसको ई अल्फा कह दें और इसको ई बीटा कह दें, और ये एनर्जीज हमने एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट की थी। तो दीज एनर्जीज वर गिवन बाय माइनस म्यू जी B naught, where B naught is the applied magnetic field. ठीक है, और ये एनर्जीज क्या है? प्लस माइनस G E over 2 times the mass of the proton H bar Mi B naught। ये पिछली दफा हमने कैलकुलेट किया था कि अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के पैरेलल है तो इनमें से एक एनर्जी है, और फील्ड के एंटी पैरेलल है तो दूसरी एनर्जी है। पैरेलल और एंटी पैरेलल होने के दरमियान एक एनर्जी डिफरेंस है, एंड दैट एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई इज, सिंस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दिस डिफरेंस विल बी द ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, व्हिच इज गिवन बाय 2g e ओवर ब्लैक होल है इधर थोड़ा सा ना, 2mp h बार mi b नॉट। अब mi की वैल्यू प्लस माइनस हाफ है, हमें पता है, तो ये कट सकता है आपस में, और हमें पता है कोई भी एनर्जी स्प्लिटिंग हो, कभी भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक लेवल की एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते। वी ऑलवेज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स। So this energy splitting can be written as h bar omega. So this omega is in fact given by G E over 2 mp B. But we know that omega is minus gamma B. So the gyromagnetic ratio is in fact GE over 2 mp. और इसकी एक्सप्लिसिट वैल्यू अगर कैलकुलेट करें प्रोटॉन के लिए, इट टर्न्स आउट टू बी 42 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। एक टेस्ला फील्ड 42 मेगाहर्ट्ज इज द लार्मो फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, हम क्वांटम से शुरू हुए, हमने क्लासिकल इक्वेशन अप्लाई की, अब वी टर्न बैक टू द क्वांटम पिक्चर, बिकॉज इफ यू वांट टू कंप्लीटली डिफाइन एंड डिस्क्राइब एनएमआर वी हैव टू रिजॉर्ट टू द क्वांटम पिक्चर। सो व्हाट इज द क्वांटम पिक्चर? Now we consider these two situations in which the magnetic field is applied and the magnetic moment can be either pointing parallel or anti-parallel. So in quantum mechanics, and when we talk about NMR, there are two things we have to study or we have to discuss. One is called a state and the other is called an operation. अच्छा, और स्टेट क्या है? स्पिन या प्रोटॉन किसी एक स्टेट में होगा, एक क्वांटम स्टेट में होगा,
For example, the magnetic moment can be pointing parallel to the applied field, it could be anti-parallel to the applied field, it could be at any arbitrary angle to the applied field. So this is the state, the quantum state of the system, of the molecule, of the spins. And when you do an NMR experiment, you have to change the state. All NMR pulse sequences which result in a spectrum, they change the state. So there are states and operations. First we'll discuss what is meant by states. Now suppose you have the magnetic field and the magnetic moment is pointing parallel or anti-parallel. Okay? So these are two different configurations of the state of the spin. So these are two possible states. Let's call one of the states alpha, ket alpha, and let's call the other ket beta. Now we know that these states, when the spin is in this state, it has a certain energy, and when the spin is in this state, it has a certain energy, and there is a splitting between these states. Suppose this is the state beta, and this is the state alpha. And this energy splitting, we know, is h bar omega, where omega is the Larmor frequency. It's also minus h bar gamma b naught. ठीक है? अच्छा, ओमेगा हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब गैमा इज नेगेटिव. ये कन्वेंशन है प्रोटॉन के लिए. अच्छा, ठीक है. इस पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट में एक एनर्जी है पार्टिकल की, एंड दैट एनर्जी इज minus h bar omega over 2, and this energy is h bar omega over 2. Agreed? ठीक है. इन दोनों की डिमांड स्प्लिटिंग है h बार ओमेगा. इसकी एनर्जी माइनस h बार ओमेगा ओवर 2, इसकी एनर्जी प्लस h बार ओमेगा ओवर 2. एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट विद व्हाट आई हैव रिटन हियर. ठीक है. अच्छा, हम ये कह रहे हैं यार ये नेगेटिव एनर्जी क्यों ले रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्यों ले रहे हैं. हम इसको जीरो भी कह सकते हैं और इसको h बार ओमेगा कह सकते हैं, इसको h बार ओमेगा कह सकते हैं, इसको 2h बार ओमेगा कह सकते हैं. असल में इंपॉर्टेंट एनर्जी डिफरेंस है और वही हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है. अब ये स्टेट है अल्फा, ये स्टेट है बीटा. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जो स्पिन है उसकी कोई भी स्टेट हो सकती है, उसकी जनरल फॉर्म उसको हम कह देते हैं psi. अब psi अल्फा भी हो सकती है और psi बीटा भी हो सकती है. अगर वो अल्फा है तो हम कह देते हैं कि वो पैरेलल है, एंटी पैरेलल है फील्ड के, और अगर बीटा है तो कह देते हैं पैरेलल है फील्ड के, लोअर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है. लेकिन क्वांटम मैकेनिकली तो जरूरी तो नहीं कि स्पिन अल्फा में हो या बीटा में हो. क्वांटम मैकेनिक्स तो कहती है सुपरपोजिशन में हो सकती है स्टेट. ठीक है. So the general form of the state is some coefficient C1 alpha plus C2 beta. ये general form है किसी भी quantum state की. Spin can be in alpha, beta, or it can be in a superposition where C1 and C2 are complex numbers. ठीक है. They belong to the complex field. ठीक है. So you can have a spin that is in a state alpha, beta, alpha plus beta, alpha minus beta, alpha plus iota beta, alpha plus e raised to I pi 4 over b. There are an infinite number of states for the proton. ठीक है. अब चलो, हम एक स्पिन है ना, इसको विजुलाइज करना भी आसान है. ठीक है. हम एक स्फीयर बनाते हैं. अब देखो, हम ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिजिकल पिक्चर और एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर एक दूसरे का सहारा लेके एक दूसरे को मजबूत करती हैं. कुछ हमने फिजिकल अप्रिसिएशन ले ली कि हाउ डज एनएमआर वर्क. नाउ वी आर लुकिंग फॉर और yearning फॉर अ मोर एब्स्ट्रैक्ट बट मैथमेटिकल बट ट्रू पिक्चर. सो लेट्स ड्रॉ अ स्फीयर. And let's call the north pole the state alpha and the south pole the state beta.
So if the state is represented by a vector, so if the state is represented by a vector whose origin is at the center of the sphere and whose tip is on the surface of the sphere, so the state can be represented by this vector. This vector has a radius 1. इस स्फीयर का रेडियस 1 है, तो वेक्टर की लेंथ 1 है, और ये इस स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे लाई कर सकता है. अब ये है अल्फा स्टेट, ये है बीटा स्टेट. लेकिन इस ठीक है, और ये वेक्टर दरअसल इस स्फीयर की सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे लाई कर सकता है. यहां लाई कर सकता है, यहां लाई कर सकता है, यहां लाई कर सकता है, यहां लाई कर, कहीं भी लाई कर सकता है. ठीक है. अब हम प्रोटॉन की स्पिन की बात करें और उसकी क्वांटम स्टेट की. यहां पे एक, अगर स्टेट अल्फा है तो एक एनर्जी है, अगर स्टेट बीटा है तो एक कोई और एनर्जी है स्पिन की. अगर पार्टिकल यहां अगर सॉरी क्वांटम स्टेट का जो वेक्टर है इज पॉइंटिंग हेयर. ठीक है. लेट्स ड्रॉ एन एक्सिस एक्स वाई जी. If the state vector, the quantum state is lying along the x-axis, what's the configuration? The quantum state will be alpha plus beta under root 2. So this point represents a quantum state, and that state is alpha plus beta under root 2. This point represents another state, that is alpha plus iota beta under root 2. This point at the far end represents another state, alpha minus beta under root 2. This point represents alpha minus iota beta under root 2. An arbitrary point on the equatorial plane, which is at an azimuthal angle phi, that will be represented as alpha plus e exponent I phi beta under root 2. देखो फाई 0 डाल दें तो ये अल्फा प्लस बीटा आ जाता है. फाई पाई बाई 2 डाल दें तो यहाँ पे आयोटा आ जाता है. फाई पाई डाल दें तो यहाँ माइनस आ जाता है. सो इट ऑल वर्क्स आउट. और अगर जरूरी तो नहीं इक्वेटोरियल प्लेन पे है या नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे है, अपर हेमिस्फीयर में भी तो हो सकता है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी तो हो सकता है. तो अगर हम ये पॉइंट लें which makes an angle theta with the alpha direction, this will give you the general state, the most general state. ठीक है. अब किसी भी पॉइंट इस स्फीयर पे किसी भी पॉइंट को डिफाइन करना, आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए और फाई की वैल्यू चाहिए. ठीक है. सो दिस पॉइंट, एनी क्वांटम स्टेट, एन आर्बिट्ररी क्वांटम स्टेट, any is given by cosine theta over 2 alpha plus ei phi sin theta over 2 beta. So the proton spin can have a quantum, the most general form of the proton spin is given by this quantum state. Everything works out. अगर थीटा 0 है तो ये टर्म खत्म हो जाएगी. लेकिन देखो ये थीटा बाई 2 का फैक्टर आ रहा है, ये बड़ा जरूरी है. जब थीटा पाई बाई 2 है, यानी इक्वेटोरियल प्लेन में जब आप लाई कर रहे हैं ना, तो ये पाई बाई 2 है तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा. ये 1 ओवर अंडर रूट 2, ये भी 1 ओवर अंडर रूट 2. ठीक है. तो यू हैव टू have a factor of 2 here, 1 over 2 here. और वो इसलिए कि प्रोटॉन स्पिन हाफ पार्टिकल है. एनएमआर में आमतौर पर स्पिन हाफ पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं. ऐसा एनएमआर
जो स्पिन 1 पार्टिकल के साथ डील करे, ड्यूटेरियम के साथ या क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई के साथ, मसलन सोडियम बोन्स की अगर आपने एमआरआई करनी है तो आप कैल्शियम एमआरआई करते हैं, कैल्शियम 41, वो उसकी स्पिन 3/2 है, तो यहां पे 3/2 का फैक्टर आ जाएगा। तो प्रोटॉन या जो नॉर्मल एनएमआर है, प्रोटॉन कार्बन 13 के साथ वो स्पिन हाफ न्यूक्लियाई है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, तो उनमें ये 1/2 का फैक्टर आ रहा है। बहरहाल दिस इज द आर्बिट्ररी क्वांटम स्टेट, ठीक है। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस नोटेशन में, एक ये कैट नोटेशन है, ठीक है। आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ा है, ठीक है ना। अब किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट आप एक वेक्टर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही है कि प्रोटॉन की ये क्वांटम स्टेट है। So every state will have a different energy, right? Every point on this sphere has a different energy. Every state has a different energy associated with it. वो उस वक्त जब हम बिल्कुल, लेकिन देखो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, हमें वो डिजेनरेसी लिफ्ट नहीं हुई, तो हम डिफरेंट स्टेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, तब अल्फा स्टेट विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम द बीटा स्टेट, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये बात याद रहे, वो एनर्जी की हम फिर अभी बाद में बात करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? आप बताओ। हाँ, अच्छा, अब देखो हम लीनियर अलजेब्रा का सहारा लेते हैं क्योंकि हमने अपनी काम जिंदगी को आसान बनाना है। हम ये कह देते हैं कि ये जो अल्फा स्टेट है ना, इसको रिप्रेजेंट कर दो एक कॉलम वेक्टर से जिसमें 1 0 है, और बीटा को रिप्रेजेंट कर दो एक कॉलम वेक्टर से 0 1, ठीक है। जो आर्बिट्ररी स्टेट है psi, वो दरअसल C1 C2 हो जाएगी ना, कोई अल्फा का कंपोनेंट है, कोई बीटा का कंपोनेंट है। या अगर इस जनरल स्टेट को लिखना चाहे वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसे लिखेंगे ना, कोसाइन θ/2 साइन θ/2 EI phi, ठीक है। आज का ज्यादा वक्त हम स्टेट्स को समझने में गुजारेंगे, ठीक है। ये है जनरल प्रिस्क्रिप्शन, नुस्खा किसी भी स्टेट को लिखने का, मैट्रिक्स फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, अब ये तो हो गया स्टेट की बात। तो अगर न्यूक्लियस या प्रोटॉन अल्फा स्टेट में है, तो हम या तो सिर्फ अल्फा लिख दें या हम अल्फा की जगह 1 0 लिख दें। लेकिन ये हमें पहले से डिफाइन करने पड़ेगा कि अल्फा को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा को इस तरह रिप्रेजेंट, बीटा को ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फा को ऐसे भी, लेकिन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इसको कहते हैं बेसिस डिफाइन करना, ठीक है। ओके, यहां तक बात बिल्कुल वाज़ेह है, साफ सुथरी है। लेकिन एनएमआर एक अजीब सा फिनोमिनन है, क्योंकि एनएमआर में एक स्पिन के साथ आप डील नहीं कर रहे होते, ठीक है। एक प्रोटॉन की स्पिन या मैग्नेटिक मोमेंट डिटेक्ट करना कुछ जान जोखों का काम है। 2-3 रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें यह दावा किया जाता है कि हमने सिंगल प्रोटॉन की स्पिन को डिटेक्ट किया। इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिटेक्ट करना निस्बतन आसान है क्योंकि जायरोमैग्नेटिक रेशियो हायर है। प्रोटॉन, अकेले प्रोटॉन के साथ आप एनएमआर नहीं कर सकते, सिग्नल इतना वीक होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉइज है उससे कम होगा। तो जनरली आप एनएमआर करते हैं 5 cc सैंपल है, 1 cc का सैंपल है, या कोई सॉलिड मटेरियल है जिसमें बिलियंस ट्रिलियंस बल्कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो जब बहुत से प्रोटॉन्स हैं और आप रूम टेम्परेचर पे हैं तो सबकी स्पिन एक सी नहीं होगी, ठीक है। इतना डिसिप्लिन नहीं है कि सारी स्पिन एक ही क्वांटम स्टेट में हो। तब आप स्टेट को कैसे लिखेंगे? यानी एक स्पिन है अल्फा स्टेट में, दूसरी स्पिन है बीटा स्टेट में, लेकिन आप उसको अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकते। ये जो अल्फा प्लस बीटा, ये जो सारी स्टेट्स मैंने यहां लिखी हैं, ये एक स्पिन की स्टेट है।
अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये एक स्पिन, एक वाहिद स्पिन की स्टेट है। इसका ये मतलब नहीं है कि आधी स्पिन्स अल्फा स्टेट में और आधी स्पिन्स आयोटा बीटा स्टेट में है, इसका ये मतलब नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये 50% स्पिन्स अल्फा स्टेट में है, 50% स्पिन्स बीटा। ये वाहिद स्पिन की स्टेट्स हैं, वाहिद स्पिन की, ठीक है। अब बहुत सी स्पिन्स है, उसकी स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एनएमआर क्वांटम मैकेनिक्स तो है, लेकिन साथ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी है, क्योंकि उसमें आप बहुत से पार्टिकल्स को डील कर रहे हैं बेक वक्त। हर पार्टिकल इंडिविजुअली क्वांटमली डिस्क्राइब हो रहा है, लेकिन जब पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज्यादा है तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का मिलाप है। एनएमआर इज क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। Now how do we describe a state? So this is a good way for writing state for a single spin, or for a large number of spins if you are sure that all of them are in the same state, identical spins, but not for spins which in the real life scenario. So how do we write this state for such a scenario? We use another kind of state. For such a more complicated and a more general case is writing, instead of psi, we write this, the outer product of psi with its dual. ये आपने पहले तो नहीं देखी चीज, कोई बात नहीं, लीनियर अलजेब्रा तो पढ़ा हुआ है ना। ये एक कॉलम वेक्टर है, इसका डुअल एक रो वेक्टर है with complex conjugate row vector, ठीक है। Now we have to perform this operation. Examples. Example number 1. Psi is alpha, ठीक है। This is a state. The density, this operator or this state is called the density matrix. क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी है? क्वांटम केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी, उसमें डेंसिटी मैट्रिक्स पढ़े होंगे? नहीं पढ़े। स्टेट्स पढ़ी ना, क्वांटम स्टेट्स वगैरह, श्रोडिंगर इक्वेशन तो पढ़ी होगी कोई। चलो, ये भी एक स्टेट है। स्टेट को लिखने का दूसरा तरीका है, मोर जनरल वे, ठीक है। सो द डेंसिटी मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अल्फा विल बी कैट अल्फा ब्रा अल्फा, लाइक दिस, कैट एंड ब्रा। तो ये तो कॉलम वेक्टर है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें इस बेसिस में जो हम पहले से डिफाइन कर चुके, वी राइट 1 0 और फिर रो वेक्टर ले लें, इसका ट्रांसपोज 1 0, और फिर हम मल्टीप्लाई करें। 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें 1 0, फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई करें 0 0, ठीक है। तो अल्फा स्टेट को हम कॉलम वेक्टर की सूरत में भी लिख सकते हैं और इस मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो बीटा बीटा है उसका डेंसिटी मैट्रिक्स, यानी बीटा स्टेट का डेंसिटी मैट्रिक्स ये हो जाएगा अफान, ठीक है। अभी बातें ना, जब असल में बहुत सी बातें उनका मजा उस वक्त आता है जब नतीजा सामने आए। अभी हम उस कठिन सफर में से गुजरा हुआ आहिस्ते आहिस्ते मंजिल की तरफ पहुंचेंगे, इससे आपको बहुत खूबसूरत लगेगी ये चीज। अब एक और स्टेट लेते हैं। अल्फा स्टेट तो हमारे पास नॉर्थ पोल पे थी, बीटा, ठीक है, बड़ी ऑर्थोगोनल स्टेट्स थी। अच्छा, एक और स्टेट देखते हैं, ये वाली स्टेट देखते हैं जो यहां पे है। उसका डेंसिटी मैट्रिक्स होगा अल्फा प्लस, ये तो आ गया कैट। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रा लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको अगर कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 1/√2 1 1, अग्रीड। और इसको कॉलम फॉर्म में, रो फॉर्म में लिखे 1/√2 1 1,
ठीक है, एक और दो और एग्जांपल्स देखते हैं। हमने ये स्टेट ली, ठीक है, इस स्टेट को देखा, अब इस स्टेट को देखते हैं। अल्फा प्लस आयोटा बीटा अंडर रूट 2, ये डेंसिटी मैट्रिक्स लिख रहे हैं corresponding to the state that exists here. This sphere is called the Bloch sphere. ब्लॉक मैंने कल भी जिक्र किया, एनएमआर के इन्वेंटर्स में से है, 1946 में इसने मैग्नेटिक रेजोनेंस का आइडिया दिया था। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसका डुअल है वो होगा ब्रा अल्फा। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना तो माइनस आयोटा बीटा, वन आयोटा, वन माइनस आयोटा। यू कैरी आउट द कॉम्प्यूटेशन, वन को मल्टीप्लाई कर, वन माइनस आयोटा, आयोटा वन, ठीक है। ठीक है, अभी देखो एक मैट्रिक्स ये आया, इसका ट्रेस क्या है, वन, इसका वन 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 वन, ये सारे मैट्रिसेस का ट्रेस वन है। कोई भी क्वांटम स्टेट हो उसका डेंसिटी मैट्रिक्स लेकिन ट्रेस वन होना चाहिए, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, हर्मिशियन मैट्रिसेस का पता है ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसके बराबर हो, तो ये हर्मिशियन है, ठीक है, ये भी से सारे हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं। तो डेंसिटी मैट्रिक्स का ट्रेस भी वन होगा और वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब हमने ये देख लो, ये डिफाइन कर लिया, ये हमने कुछ एग्जांपल्स ले ली। अब उन एग्जांपल से हम क्या नतीजा निकालेंगे, उसके लिए हम इधर आ जाते हैं। एक डेंसिटी मैट्रिक्स है कोई सा, जिसका ट्रेस वन है, यानी अगर ये ए है और ये बी है तो ए प्लस बी इक्वल्स वन, ठीक है, और ये रियल नंबर्स हैं दोनों, यानी ए प्लस ए बी दोनों रियल नंबर्स हैं और ए प्लस बी वन के बराबर है। और ये एक सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहां पे एग्जिस्ट करता है। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ना, यानी सी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये डेंसिटी मैट्रिक्स की जनरल प्रॉपर्टी है। अब इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स हो, दुनिया जहां का कोई भी मैट्रिक्स ले लें जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है ना, उसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं। देखो ये कायनात, ठीक है, कायनात है ना, आलम वजूद है ये, ठीक है, इसमें 3 डायमेंशन है। कोई भी वेक्टर ले लें, उसको आप प्रोजेक्शन ले सकते हैं ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जी एक्सिस के लॉन्ग। तो आप यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लें, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जी के लॉन्ग, ठीक है। आप उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस बेसिस में, अगर 3 आपका यूनिट वेक्टर डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वी एक्स, वी वाई और वी जी। क्यों? बेसिस डिफाइन हो गया, दैट बेसिस इज डिफाइंड बाय आई, जे एंड के। तो जिस तरह ये आलम कौनो मकान है, इसी तरह ये मैट्रिसेस की भी एक दुनिया, हर्मिशियन मैट्रिसेस भी एक स्पेस में रहते हैं। उस स्पेस के कुछ बेसिस मैट्रिसेस हैं,
ठीक है, उस स्पेस के भी कुछ बेसिस मैट्रिसेस हैं और वो 3 है। वो क्या है? एक है दूसरा है और तीसरा है सॉरी ये 0 है। ठीक है, इन 3 मैट्रिसेस की फॉर्म में, और ऑफ कोर्स आपके पास ये आइडेंटिटी भी है। किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स को आप एज अ सम ऑफ दीज मैट्रिसेस विद सम कोएफिशिएंट्स, विद सम रियल कोएफिशिएंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से यहां 1/2 भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, यानी एनी। अच्छा, इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं IG, इस मैट्रिक्स को कह देते हैं IX, इस मैट्रिक्स को कह देते हैं IY, और ये मैट्रिक्स जाहिर है आइडेंटिटी, मोटा 1 लिख रहा हूं मैं, आइडेंटिटी ओवर 2। ठीक है ना, नाम दे दिया हमने। अब किसी भी मैट्रिक्स रो को हम लिख सकते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स यूनिट ट्रेस आइडेंटिटी ओवर 2 प्लस सम कंपोनेंट ऑफ IX, लेट्स कॉल इट CX, plus some component of IY, let's call it CY, plus some component of IZ। किसी भी स्टेट को, डेंसिटी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जब CX, CY and CZ are real numbers now। कुछ मुश्किल मैथमेटिक्स तो नहीं है ना ये, ठीक है। किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स को जिसका यूनिट ट्रेस है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे कोई कोएफिशिएंट इसलिए नहीं डाला, क्यों नहीं डाला? क्योंकि आइडेंटिटी ओवर 2 का ट्रेस 1 है, यहां पे कुछ नहीं हो सकता और साथ इसके ट्रेस 1 रखना है ना, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। और ये IX ये ट्रेसलेस है, IY ट्रेसलेस है, IZ ट्रेसलेस है, तो इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट आ सकता है। A plus B is 1, दिस इज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर? अब वो एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने ये एग्जांपल देखी, अल्फा अल्फा इज इक्वल टू दिस। तो यहां चौक बड़े थोड़ी रंगों के हैं। अब आप ये एग्जांपल देखो, अल्फा अल्फा इक्वल्स दिस डेंसिटी मैट्रिक्स, उसको रिप्रेजेंट करें अगर उस फॉर्म में, कैसे करेंगे? आइडेंटिटी ओवर 2 ठीक है, I प्लस IZ। आइडेंटिटी ओवर 2 प्लस IZ, इसको करके देख लो। हाफ नहीं, देखो ये तो ठीक लिखा है ना मैंने, इसको अगर डिकम्पोज करना है तो आइडेंटिटी ओवर 2 प्लस IZ लिखूंगा। ठीक है, IZ के अंदर मैंने शामिल कर लिया है 1/2। अगर मैं 1/2 शामिल ना करूं ना तो उनको पॉली मैट्रिसेस कहते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाले पॉली ने उनको वजह किया था कि यार कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो ना, उसको इन 3 मैट्रिसेस के सम के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज आइडेंटिटी ओवर 2 प्लस IZ। और ब्लॉक स्फीयर में अगर देखें, ये जो पॉइंट है इसको हम, ये आइडेंटिटी ओवर 2 प्लस IZ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है।
ठीक है, तो इसके साथ हम आइडेंटिटी ओवर टू तो हमेशा हर स्टेट के साथ आएगा, क्योंकि ट्रेस को 1 रखना, और बाकी बेचारे जो पॉली मैट्रिसेस हैं तीनों, उनका तो ट्रेस ही नहीं है, तो आइडेंटिटी ओवर टू तो हर स्टेट में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आइडेंटिटी ओवर टू तो है, इस पॉइंट को हम आईजी भी कह सकते हैं, ये स्टेट आईजी भी कहला सकती है। ठीक है, अगर ये बीटा बीटा देखें और इसको करें तो दिस इज आइडेंटिटी ओवर टू माइनस आईजी। तो ये जो साउथ पोल है इसको माइनस आईजी कह सकते हैं। और ये जो पॉइंट है जो अल्फा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट 2 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वो ये है, दिस इज आइडेंटिटी ओवर 2 प्लस आई एक्स। दिस इज आइडेंटिटी ओवर 2 प्लस आई वाई। चुनाचे ये पॉइंट आई एक्स भी कहला सकता है, ये पॉइंट आई वाई भी कहला सकता है। ठीक है, इसी तरह कोई भी पॉइंट आप ले लें, आप उसको आई एक्स आई वाई और आई जी की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा कि भाई इस पॉइंट को कैसे आपने आई एक्स आई वाई और आई जी में लिखना है। अब देखो हमारे पास जो ब्लॉक स्फीयर है जिसपे हम एक्स वाई और जी हमने डिफाइन किए हुए एक्सिस अपनी सहूलत की खातिर, उस पे जो स्टेट्स हम कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं पॉली मैट्रिसेस को, ये आई एक्स है, यहाँ पे स्टेट, यहाँ आई वाई है, यहाँ आई जी है। अब इसकी कैलकुलेट करेंगे, माइनस आई एक्स होगा, ये जिस तरह माइनस आई जी है ये माइनस आई वाई होगा, ये पॉइंट आई एक्स कोसाइन फाइव प्लस आई वाई साइन फाइव होगा। ये मैं आपको होमवर्क में पूछूंगा से, ये पॉइंट आई एक्स कोसाइन फाइव। अब देखो ये एक हम अपने ज़हन में तस्वुर कर सकते हैं, एक वेक्टर है आई, ठीक है, एक वेक्टर है आई तस्वुर की खातिर, और उसका एक आई एक्स कॉम्पोनेंट है, एक आई वाई कॉम्पोनेंट है और एक आई जी कॉम्पोनेंट है। इसकी तफसील में थोड़ा सा आप कंफ्यूज करेगी नोटेशन, लेकिन आप आई एक्स आई वाई और आई जी की कितनी मिकदार है, ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स की तादाद की मैग्नीट्यूड बता देना, सी एक्स सी वाई और सी जी, तो आपके पास पूरी क्वांटम स्टेट आ जाएगी। एक बात आखिरी ये याद रखें कि अगर आर्बिट्ररी स्टेट है, हमने ये सी एक्स फाइंड करना है, आपको डेंसिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ, आपने देखना उसमें आई एक्स कितना है, तो व्हाट विल यू डू, यू टेक दिस स्टेट, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कोएफिशिएंट, what you would do is you multiply rho by ix matrix and take the trace. You will find this is equal to cx. लेकिन आपको एक नॉर्मलाइज भी करना है ट्रेस ऑफ आई एक्स स्क्वायर के साथ। ये मैं आपको होमवर्क में इस तरह की बातें पूछूंगा आपसे कि सी एक्स फाइंड, क्योंकि आई एक्स को आई वाई से मल्टीप्लाई करे ना और ट्रेस ले लें, जीरो आ जाएगा। जिस तरह ये एक वेक्टर आई को जे से डॉट प्रोडक्ट लें, जीरो आता है ना, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। आई को के से डॉट प्रोडक्ट लें, जीरो आ जाती है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। किसी भी वेक्टर को इन तीन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के सम के तौर पे लिख सकते हैं। इसी तरह ये भी इन द सेंस ऑर्थोगोनल है, और मैट्रिक्स में ऑर्थोगोनल डिफाइन होता है इस तरह कि दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्रेस ले लो, ये ऑर्थोगोनैलिटी का चेक है। ठीक है, तो ये अब हमने स्टेट को डिफाइन किया, हमने डेंसिटी मैट्रिक्स को डिफाइन किया, उससे हमें स्टेट की थोड़ी सी प्रिस्क्रिप्शन पता चली। कोई भी बेसिस ले सकते हैं, आई एक्स आई वाई की जगह
आई एक्स प्लस आयोटा वाई और आई एक्स माइनस आयोटा वाई ले सकते हैं, आई प्लस आई माइनस उसको कहते हैं, लोअरिंग रेजिंग ऑपरेटर भी ले सकते हैं, यूनिक नहीं है बिल्कुल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं आपको। एनएमआर की तरफ हम ज्यादा, ये देखो ये बेसिक्स हैं, ये बहुत जरूरी हैं, इन बेसिक्स की समझ आई आपको, समझ आई? राबिया क्लियर है? आसान चीज है, आपने तो किया भी होगा बेशुमार, लेकिन आपको समझ आई है ना इसका क्या है? बताओ, ये इस तरह ना नफी ना इस बात आइए समझ के नहीं पता चला, लेकिन अब इसकी समझ यानी कि हम क्यों कर रहे हैं, तो आप बताओ। हाँ अब ज्यादा के लिए आते हैं, ठीक। अब देखो एक टेस्ट ट्यूब है, पानी है, इसके अंदर बेशुमार प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब बिलफर्ज, अब स्टैटिस्टिक्स को हमने देखना है। बिलफर्ज सपोज देयर आर n protons, capital N protons, and each one of those protons is in the state alpha, ठीक है, each one of those protons is in the state alpha. Now if you associate a density matrix with every proton, that density matrix will of course be given by cat alpha bra alpha, ठीक है, plus Iz. All of these protons are identical, they're in the same state. Okay. Now, if all of them are in beta, the density matrix will be of each proton will be this. ठीक है? But what will be the total density matrix? The density matrix of the entire system. It will be the same. It will be the same because all the protons are in an identical state. ठीक है, you specify the density matrix of one proton and the density matrix of all the protons will be similar, so the density matrix of the entire system will just be this, ठीक है। So such a state is called a pure state, a pure quantum state. This is called a pure state. किसी तरह की मिलावट नहीं है, लेकिन ऐसी स्टेट हासिल करना ये दीवाने का ख्वाब है, क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पे एनएमआर कर रहे हैं भाई, और थर्मल फ्लक्चुएशंस हैं और एंगुलर मोमेंटम्स प्रोटॉन की, ये मुमकिन ही नहीं कि एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हो, ठीक है ना, मुमकिन ही नहीं। अगर आपने सब प्रोटॉन्स के एंगुलर मोमेंटम्स को और मैग्नेटिक मोमेंट्स को एक ही डायरेक्शन में लाइन करना है, यानी एक ही क्वांटम स्टेट में लेके आना है, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 केल्विन, जो कि इम्पॉसिबल है। और जब 0 केल्विन जाए लिक्विड ने तो किसी हायर टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाना है, और सॉलिड स्टेट एनएमआर एक और बला का नाम है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी यह है कि फील्ड इतनी बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड इतनी बढ़ा दें कि लोअर लेवल ही पॉपुलेट हो। देखो 2 एनर्जी लेवल्स है ना, और इनके दरमियान एक एनर्जी गैप है h बार ओमेगा। बिलफर्ज ये स्टेट है बीटा, ये स्टेट है अल्फा। अब कुछ प्रोटॉन्स इस स्टेट में है, कुछ प्रोटॉन्स इस स्टेट में है। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे प्रोटॉन्स इस स्टेट में आ जाएं, तो ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए ना, कंपेयर टू व्हाट, कितना बढ़ जाना चाहिए? थर्मल एनर्जी से ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि थर्मल एनर्जी एक एक्साइटेशन की फॉर्म है, वो प्रोटॉन्स को हायर एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने की कोशिश कर रही है। तो h बार ओमेगा हैज टू बी मच लार्जर देन kBt, kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये केमिस्ट की या फिजिसिस्ट की फिंगर टिप्स पे ये ख्यालात होने चाहिए, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की बेसिस है, ये चीज केमिस्ट्री की बेसिस है ये आर्ग्यूमेंट्स। तो एक तरीका तो यह है कि टेम्परेचर 0 केल्विन लोअर करते रहो टेम्परेचर, और उम्मीद रखो कि आपकी स्टेट प्योर होती जा रही है,
लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है करना। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इतनी बढ़ा दो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितनी बढ़ाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए हमारे पैसे खर्च होते हैं, हमने करंट गुजारना है कॉइल के अंदर से, और कॉइल के अंदर से अब करंट गुजरता है, हीट अप होती है, वो जल जाती है, हर मटेरियल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो चलो सुपर कंडक्टर बना के देखते हैं, लेकिन सुपर कंडक्टर में भी ज्यादा करंट गुजारें तो वो सुपर कंडक्टर नहीं रहता, उसकी भी एक क्रिटिकल करंट होता है। तो लिमिटेशंस है हमारे पास। हम बिलफर्ज 14 टेस्ला से ज्यादा की फील्ड नहीं बना सकते, 15-16 टेस्ला से ज्यादा की फील्ड जमीन पे, कुर्राई जमीन पर नहीं बना सकते। लोगों ने बनाई है 100 टेस्ला की, लेकिन ऐसे मैग्नेट है 100 टेस्ला के, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं कि मैग्नेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो अंडरग्राउंड होते हैं एक्सपेरिमेंट। उससे आप NMR तो नहीं कर सकते, और SSC के बेसमेंट या 5th फ्लोर पे तो नहीं डाल सकते ना। तो फील्ड की भी लिमिटेशन है। तो प्योर क्वांटम स्टेट दीवाने का ख्वाब है, लेकिन ज्यादातर अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये है आपके पास क्वांटम स्टेट एक प्रोटॉन की, देखो √2 का फैक्टर इसलिए आ रहा है कि हमने ट्रेस को 1 रखना है नॉर्मलाइजेशन के लिए। अच्छा ये है, अब बताओ एक प्रोटॉन इस स्टेट में और बिल्कुल सारे प्रोटॉन इसी स्टेट में है, ठीक है। इसका हमने जब डेंसिटी मैट्रिक्स लिखा तो हमारे पास आइडेंटिटी ओवर 2 प्लस IX आ गया, और डेंसिटी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स फॉर्म ये थी, ठीक है। तो ये प्योर है ना, प्योर क्वांटम स्टेट है ना, बताओ प्योर क्वांटम स्टेट है ना, सब प्रोटॉन इसी स्टेट में है। तो जरूरी नहीं कि प्रोटॉन सिर्फ अल्फा या बीटा में, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस आयोटा, किसी भी ब्लॉक स्फीयर में कहीं भी लाई कर सकते हैं, वो प्योर क्वांटम स्टेट ही रहेगी। और इसका ये मतलब हरगिज 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 नहीं है कि 50% प्रोटॉन्स अल्फा स्टेट में है, 50% प्रोटॉन्स बीटा स्टेट में है, ठीक है। ये एक प्योर क्वांटम स्टेट है और कोहेरेंट स्टेट है, मिक्सचर नहीं है स्टेट्स का, एक ही तरह की स्टेट है। हर स्पिन अपने साथ अगर डेंसिटी मैट्रिक्स कैरी कर रहा है ना, तो हर स्पिन का डेंसिटी मैट्रिक्स एक सही है, ठीक है। ये प्योर क्वांटम स्टेट्स हैं जो हमें पता है दीवाने का ख्वाब है। अब बिलफर्ज हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर है, ऐसा टेम्परेचर इतना हाई हो जाए, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होंगे तो इनमें रिलेटिव पॉपुलेशंस क्या होंगी, सारी इस पे चली जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। तो अब हमारे पास n प्रोटॉन्स है जिसमें n/2 प्रोटॉन्स अल्फा स्टेट में है और n/2 प्रोटॉन्स बीटा स्टेट में, ठीक है। अब इसका डेंसिटी मैट्रिक्स लिखना है। अगर ये अब हम ये स्टेट है ना, स्टेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, कैट में भी लिख सकते हैं और रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेंसिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में भी। लेकिन इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को, इस तरह के मिक्सचर को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? अगर सिर्फ अल्फा होता स्टेट, प्योर स्टेट होती, तो डेंसिटी मैट्रिक्स ये था ना, अल्फा अल्फा, इसका डेंसिटी मैट्रिक्स है बीटा बीटा। अब हाफ है इसका और हाफ है इसका, fraction of the spins which are in the state alpha is 1/2, fraction of the spins which are in state beta this. So this is the density matrix, and it will be, of course it will be different from this. This is, अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? अल्फा अल्फा ये हो गया, ओ सॉरी, और बीटा बीटा ये हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा। और ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये मिक्स्ड स्टेट है,
प्योर स्टेट का उलट मिक्स्ड स्टेट होती है। और देखो इसमें कोई x कंपोनेंट नहीं है, कोई y कंपोनेंट नहीं, कोई z कंपोनेंट नहीं है। अगर ऐसी स्टेट हो ना आपके पास, आप उससे कोई NMR नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कोई पोलराइजेशन नहीं है। हमने देखा किसी भी स्टेट को आप यूं लिख सकते हैं, जो ये वाली टर्म है ना, ये मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल है अलोंग x, ये वाली टर्म मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल है अलोंग y, ये वाली टर्म मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल है अलोंग z। ठीक है, लेकिन एक ऐसी डेंसिटी मैट्रिक्स जिसमें ये इनमें से कोई भी टर्म नहीं है, वो अनपोलराइज्ड है, उसमें इक्वल पॉपुलेशन है अल्फा स्टेट में और बीटा स्टेट में, उससे आप किसी किस्म की सिग्नल हासिल करने की तवक्को ही ना रखें। यूं समझ, जितनी अब्जॉर्प्शन है उतनी एमिशन, उससे आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो ये एक मिक्स्ड स्टेट है, और इस मिक्स्ड स्टेट को ब्लॉक स्फीयर पे कैसे जाहिर करेंगे? कर ही नहीं सकते, बल्कि कर सकते हैं, ये जो सेंटर है ना स्फीयर का, इंटीरियर, ठीक, तो जो इस सरफेस है ना स्फीयर की, वो प्योर स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग करती है। और अगर आप अंदर आते जाएं सरफेस इंटीरियर की तरफ, वो मिक्स्ड स्टेट्स बनती जाती हैं। ठीक है, अब आखिरी चीज जो हम देखेंगे, ये मैंने आपको एग्जांपल्स को थोड़ा सा मोटिवेट मैं कर रहा हूं, आप कर पाए हो आपको जी। अभी तो हम देख रहे हैं स्टेट क्या है, कि रोल प्ले का मतलब हमें सिग्नल क्या मिल रहा है। ठीक है, वो मैं भी आपको बताता हूं, आज नहीं तो अगली दफा बताऊंगा। डेंसिटी मैट्रिक्स आप समझ लें फिंगरप्रिंट है, या डेंसिटी मैट्रिक्स पता हो स्टेट का, आप सब कुछ उससे अक्स कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सिग्नल क्या है, कितनी स्ट्रेंथ का है, डेंसिटी मैट्रिक्स के अंदर सारी चीजें पोशीदा हैं। ठीक, अब हमने देखना कि इस डेंसिटी मैट्रिक्स से हमें क्या पता चल रहा है। अभी तो हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है जितना मैंने बताया कि ये डेंसिटी मैट्रिक्स है, इसमें x कंपोनेंट इतना है, y कंपोनेंट इतना, z कंपोनेंट इतना है। तो मैग्नेटाइजेशन किस डायरेक्शन में लाई कर रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवालों के जवाब देने ही के लिए मैं आया हूं आपके पास, मैं वक्त पर दूंगा ये सारे। ठीक है, अच्छे सवाल हैं ये, इनको रखें अपने पास। अब आपकी तरफ में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जरा टेस्ट करते हैं। इस सवाल का जवाब देने लगे अब हम, कि जब हम NMR एक्सपेरिमेंट शुरू करने जा रहे हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर अपना सॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट डाला, फॉर एग्जांपल वाटर। व्हाट इज द इनिशियल स्टेट? मैक्सिमली मिक्स्ड। ये मिक्स्ड स्टेट होगी, ये स्टेट होगी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सीलेंट। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द डेंसिटी मैट्रिक्स फॉर द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो रो, अब इक्विलिब्रियम डेंसिटी मैट्रिक्स क्या है? ये आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पढ़ा नहीं हो डेंसिटी मैट्रिक्स? चलो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, थोड़ा सा इनएक्यूरेट है लेकिन समझना आसान है। कभी कभी वी हैव टू trade off accuracy for simplicity. So let's do a little bit of trading off. Let's be a little bit inaccurate but somewhat simpler.
वी हैव टू स्टेट्स, बीटा अल्फा, ठीक है, ये दो स्टेट्स हमारे पास, और टेम्परेचर एट कैपिटल टी। ये बात याद रखो कि जरूरी नहीं कि स्पिन या अल्फा में हो या बीटा में हो, वो ब्लॉक स्फीयर में कहीं भी लाई कर सकता है। लेकिन अब हम एक इनएक्यूरेट तो नहीं, इफेक्टिवली वही रिजल्ट निकलता है, लेकिन एक सिंपलर अप्रोच से मैं समझाने जा रहा हूं। टेम्परेचर एट टी, इस स्टेट की कोई एनर्जी है और इस स्टेट की कोई एनर्जी है। ये है इस स्टेट की एनर्जी है ई बीटा, इस स्टेट की एनर्जी है ई अल्फा। द फ्रैक्शन ऑफ स्पिन्स विच आर इन द स्टेट बीटा, ये कितनी होगी, एन अल्फा कहते हैं अगर उसको, एन बीटा कितना होगा, द फ्रैक्शनल पॉपुलेशन ऑफ, देखो इसके अंदर कोई पॉपुलेशन है स्पिन्स की और कुछ इसके अंदर है, जाहिर इसमें कुछ कम होगी, तो व्हाट इज एन बीटा, एक्सपोनेंट माइनस ई बी ओवर के बी टी, बस। पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, और इसी तरह एन अल्फा, अच्छा तो डेंसिटी मैट्रिक्स लिखना थोड़ा आसान हो गया। रो इज इक्वल टू proportion in beta is given by this 1 over z ठीक है ना। फ्रैक्शन आप बता रहे हैं कि कितने परसेंट या कितने फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आपकी स्टेट में और कितने मोल फ्रैक्शन इस स्टेट में। ठीक है, अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में यही होगा ना, अल्फा अल्फा इज 1 0 0, ठीक है ना, अग्रीड फिलहाल। ये इसका डेंसिटी मैट्रिक्स ये है। ओके, नाउ इफ KBT is much larger than E alpha minus E beta, ठीक है, तो KBT E alpha से बहुत बड़ा है अगर, या आप इसको यूं कर लेते, इसको यूं लिख लेते हैं, एक्सपोनेंट माइनस E alpha कॉमन ले लिया, KBT ओवर Z, ठीक है, 1 0 0 एक्सपोनेंट डेल्टा E ओवर KBT आ जाएगा ना, E अल्फा माइनस, ठीक है, डेल्टा E इज दिस थिंग, E अल्फा माइनस E बीटा। ओके, नाउ इफ KBT is much larger than delta E, हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, असल में अगर ये है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ये है माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये KBT रूम टेम्परेचर, आप T की वैल्यू रूम टेम्परेचर की डालो, ये टिपिकल वैल्यूज डालो जायरोमैग्नेटिक रेशियो से, तो दिस स्पेसिंग इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द रूम टेम्परेचर।
ठीक है, so this is an extremely good approximation. It's called the high temperature approximation. So now let's look at this. The density matrix and equilibrium. Every NMR experiment starts on equilibrium in most cases, is given by exponent minus E alpha kBt, और ये Z को भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, माइनस E alpha ओवर kBt प्लस एक्सपोनेंट माइनस E beta ओवर kBt. Approximately in the high temperature regime 1 0 0 1 plus h bar omega, डेल्टा E की बजाय h bar omega भी लिख सकते हैं kBt. थोड़ी सी गलती तो नहीं हो रही कहीं? माइनस ई अल्फा के पी टी है, एक्सपोनेंट माइनस ई अल्फा के पी टी. थोड़ा सा नहीं, एक मिनट. एंटिटी ठीक है, ठीक है. थोड़ा सा अगर मैं यहाँ एक्सपोनेंट माइनस ई बीटा ओवर के बी टी भी ले आता ना, जरा आसानी हो जाती. तो थोड़ा सा मुझे इजाजत देते हैं इसको रीट्रैक करने की? इधर 2 डाल दें. एक मिनट. अगर मैं ऊपर नीचे ई अल्फा इससे डिवाइड करूं, ठहर जाए जरा, इसको मैं थोड़ा सा सॉरी, ये किए मुझे 5-6 साल हो गए, जरा भूल गया. वन ओवर जी ई अल्फा. अच्छा, ठीक है, हमने ये चीज कॉमन ली. उसके बाद यहां 2 लिया.
ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी मैट्रिक्स है, इक्विलिब्रियम डेंसिटी मैट्रिक्स. मैंने कोई चीजें कॉमन ले ली, एक्सपोनेंट माइनस ई अल्फा ओवर 2 kBt, एक्सपोनेंट माइनस ई बीटा ओवर 2 kBt. So this is what I get at the end. ठीक है, तो I can write this as exponent minus e alpha plus e beta over 2 kBt over z is in fact exponent minus e alpha over kBt plus exponent minus e beta over kBt. This term is, we know that delta E is h bar omega and it's e beta minus e alpha. So this term is exponent h bar alpha, h bar omega over 2 kBt, 0, 0. This term is exponent minus h bar omega over 2 kBt. ठीक है, now what happens? अब हम ये टर्म, इसको मैं k कह देता हूं, कैपिटल K. ठीक है, एक्सपैंड करूं, h bar omega is much smaller than 2 kBt. So this term can be written as 1 plus h bar omega over 2 kBt, 0, 0. This term can be written as 1 minus h bar omega over 2 kBt. ठीक है, so you can write this as k 1 0 0 1 plus some capital K h bar omega 2 kBt Iz. And if you expand this with the condition that kBt is much larger than E alpha and E beta, you will get 1 over 2. This K is 1 over 2. ठीक है, so you can put a 1 over 2 here. I can give this to you in homework. You can put a 1 over 2 here, so this becomes 1 over 4. So this is your equilibrium density matrix. Alright, so what is the equilibrium density matrix? When you start your NMR experiment, you put your water solution or any solution of interest inside a magnet at room temperature. You are starting off with an equilibrium density matrix. You're starting off with an equilibrium state, and that equilibrium state, as we've seen, is given by identity over 2 plus h bar omega over 4 kBt Iz. This is what you're starting off with. Now your magnetic field is in the z direction, B naught in the z direction. You expect that your magnetization vector will be pointing in the z direction. ठीक है? Now what happens? How do you know that? If you write the density matrix, there is an Iz component, and the Iz component is telling you the direction of the magnetization. ठीक है? Now what is the magnetization? If you want to find the magnetization along the x-axis, what you do is you take your density matrix, multiply it by Ix, find the trace and divide by the trace of Ix squared for normalization.
this, and then you multiply it by the number of spins per unit volume, you get the magnetization along X. If you want to find the magnetization along Z, you take your density matrix, multiply it with Iz, find the trace, divide by trace Iz squared, multiply by the number of spins per unit volume, you get the magnetization along Z. This could be any density matrix. So if you are in a state of equilibrium, we have derived the equilibrium density matrix. This is what an NMR experiment is starting off by. And you will find out that since it has an Iz component, you multiply the density matrix with Iz, you multiply it with Iz, only this, you multiply it with Ix. If you multiply this with Ix, find the trace, it will be 0. देखो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि trace of Ix with Iy is equal to trace of Ix with Iz is equal to trace of Iy with Iz, and all of them are 0 because Ix, Iy and Iz are mutually orthogonal matrices. Only trace of Ix with itself, this trace of Ix squared is equal to trace of Iy squared, which is equal to trace of Iz squared. This is non-zero and all of them are equal. And I think the answer is 1/2 perhaps. Yes, the answer is 1/2. So now you have this equilibrium density matrix. You multiply it with Ix, find the trace, it will be 0. You multiply it with Iy, find the trace, it will be 0. You multiply it with Iz, something survives. And the trace of rho equilibrium with Iz and divided by normalization, which is 1/2, multiplied by the number of spins per unit volume, will give you the magnetization along Z. ठीक है? तो ये जो equilibrium density matrix है, the sample is starting off with a magnetization along Z. Suppose your equilibrium density matrix, or suppose your density matrix was simply identity/2. It is a mixed state, maximally mixed, totally random state. Does it have any magnetization or any polarization? No. You find the trace, you multiply it with Ix, find the trace, 0. Multiply it with Iy, find the trace, 0. Multiply with Iz, find the trace, 0. So this density matrix is maximally mixed, it's random. You can think that the spins are pointing in all random directions, and therefore as a whole the sample is unmagnetized. But in this equilibrium density matrix there is a magnetization along Z. There is a magnetization along Z, and this coefficient will tell you how big is that magnetization. ठीक है, ये coefficient हमें बताएगा कितनी बड़ी magnetization है, और हम देखते हैं कितनी बड़ी magnetization है. H बार ओमेगा ओवर 4 kBt देखते हैं कितनी, इस नंबर की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है. सपोज H बार इज 6.67 इंटू 10⁻34 ओवर 2 पाई. ओमेगा हम ले लेते हैं 300 मेगाहर्ट्ज. 300 इंटू 10⁻6 इंटू 2 पाई, क्योंकि हमने रेडियन पर सेकंड में काम करना है. 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 298. इसको कैलकुलेट करके देख लें, इट विल बी एन एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर. मेरा ख्याल है दिस नंबर विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵.
NMR, अगर आपके पास एक स्पिन होती इक्विलिब्रियम में रूम टेम्परेचर पर, तो ये फैक्टर मैग्नेटाइजेशन का इतना स्मॉल है कि आप उसे डिटेक्ट ही ना कर पाते। हम NMR करते, इस NMR, ये बात याद रखें, NMR इज नॉट अ सेंसिटिव टेक्निक। NMR इज नॉट अ सेंसिटिव टेक्निक, यानी उससे सिग्नल बहुत कम मिलता है। सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि सिग्नल बहुत कम मिलता है, बट NMR इज अ केमिकली स्पेसिफिक टेक्निक, उसमें रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी है अगर हम कुछ कंडीशंस से। तो NMR सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। NMR हम कर इसलिए पाते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें ये जो N है ना, ये वाला नंबर ऑफ स्पिन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा तादाद में हमारे पास स्पिन्स हैं कि इवन दो दिस फैक्टर इज वेरी स्मॉल, even though this polarization is very small, the sheer number of the spins, the sheer number of the molecules gives us some signal. और MRI इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक इसलिए है कि हमारा जिस्म 80% पानी से बना है, उसका वजन का 80% पानी है। पानी क्या है? वाटर क्या है? H2O, प्रोटॉन्स। और हम MRI कर इसलिए पाते हैं, सिग्नल हमें इसलिए मिलता है कि तादाद बहुत ज्यादा है स्पिन्स की। अदरवाइज NMR इज नॉट अ सेंसिटिव टेक्निक। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन दुश्मन है NMR की सेंसिटिविटी का, क्योंकि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन रोड ब्लॉक ये एनर्जी स्पेसिंग इतनी थोड़ी है थर्मल एनर्जी की निस्बत कि हमें जो पॉपुलेशन डिफरेंस नहीं मिलता, H बार ओमेगा ये बहुत छोटा है KT से, इसलिए NMR इज नॉट अ सेंसिटिव टेक्निक। तो लोग NMR करने के लिए ना नॉन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग स्टेट है वो बोल्ट्जमैन स्टेट ना हो, इक्विलिब्रियम स्टेट ना हो। वो कोई और टेक्निक्स यूज करते हैं, ऑप्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं, पैराहाइड्रोजन यूज करते हैं, केमिकल इंड्यूस्ड डायनामिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉन से पोलराइजेशन उधार ले लेते हैं, ठीक है, एंड और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर डबल रेजोनेंस करते हैं। तो NMR इज नॉट अ सेंसिटिव टेक्निक। आज हमने ये देखा कि जो स्पिन्स हैं वो किसी एक क्वांटम स्टेट में स्टार्ट होती हैं, उस स्टेट को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है डेंसिटी मैट्रिक्स। जितने भी हम आगे डिस्क्रिप्शन शुरू करेंगे वो इस स्टेट पर कोई ऑपरेशन एक्ट करना है, हमने इस स्टेट पर कोई ऑपरेशन एक्ट करना और सिग्नल लेना है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, इससे हम शुरू करेंगे एक्सपेरिमेंट। हम क्या पल्सेस अप्लाई करेंगे कि हमें उससे सिग्नल मिले, ठीक है। तो अभी तक कोई क्वेश्चन आपने पूछना है? कुछ समझ आई है थोड़ी बहुत? आपका नाम क्या? हाँ आकाश। आप फ्रेश सोफम हो रहे हैं? समझ आइए? आप सच में समझ आइए? ठीक है, तो चले हम अगली दफा फिर यहां से इस इक्विलिब्रियम स्टेट से शुरू करेंगे। अपने स्टेट्स की जितनी बात करनी थी कर ली, अब हम ऑपरेशंस की बात करें कि NMR एक्सपेरिमेंट होता कैसे है। ये स्टेट हमें शुरू में मिल गई, अब हमने इसे करना क्या है, सिग्नल कैसे लेना है इससे। पहले दिन हमने एक आइडिया ले लिया था कि मैग्नेटाइजेशन साइनसॉइडली वेरी कर रही है, उससे एक सिग्नल हमें मिलने की तवक्को है। अब हम क्वांटम मैकेनिकली देखेंगे डेंसिटी मैट्रिक्स हमें कैसे बताता है सिग्नल लेना है, और ये 3 लेक्चर इस पे होंगे। फिर हम एप्लीकेशंस के भी, एक मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्डिंग NMR को सिर्फ ऐड करती है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एथेनॉल अल्कोहल का ग्रुप है, एल्डिहाइड एक ग्रुप है, पैराफिन्स हैं, ओलिफिन्स हैं, उनके कहाँ केमिकल शिफ्ट का क्या है, वो पूरे हम आखिरी 3-4 लेक्चर्स में उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।